Doing music since childhood, but पिछले 2 साल से मैं अपनी independent music की मैंने journey start की, and I've been working with the maestro Salim and Suleiman for the past 12 years. उनकी जितनी फिल्मों से मैंने सीखा है, उनके गानों से, उनके बैकग्राउंड स्कोर से, उनके साथ स्टूडियो में टाइम स्पेंड करने से जो मेरी ट्रेनिंग रही है, वो मैं पिछले 2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने गानों में भी ला सकूँ और अपना म्यूज़िक आप तक पहुँचा सकूँ. एंड माहौल इज़ जस्ट another addition to that catalog and the list of songs that I want to put out. And it's very special. It's a romantic song. And मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा गाने के बारे में. I hope जब हम गाना देखेंगे, you will know what I'm talking about and what the song is trying to say. Sir, can I please have you here in the center for a second? I'd like for you to say something about it. इसको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत उम्र हो गई है क्योंकि I know him since ages now. I think I know your father more than you. And Ashok ji को कौन नहीं जानता. He's always been there to support the industry and people in need. So here I am today for him and for you, and all the best. And for these great musicians and music directors Salim Suleiman and their album. Their company is called Merchant Records. So यार जाओ immediately सब लोग merchants को और अमीर बनाओ. And I hope you all love what this boy has done and Salim Suleiman has done, and all the best to you and to everyone involved with you and your team. तो माहौल बना दो फिर. Sir, जाने से पहले before we play the song, I'd like Salim sir also for you to come for a second. Suleiman sir, please. ये जो मर्चेंट रिकॉर्ड्स का जो प्लेटफॉर्म है, आई थिंक फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट इट्स सच अ गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज यू नो कई बार ऐसा होता है कि हम गाने बनाते हैं बट वी डोंट नो हाउ टू पुट इट आउट इनटू द वर्ल्ड. वी डोंट नो कि ऑडियंस तक कैसे पहुंचे. तो ये जो आप ये जो पहल है एज अ लेबल, एज अ रिकॉर्ड लेबल, यू नो प्रमोटिंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक एंड आर्टिस्ट, आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस फॉर मेकिंग श्योर आवर म्यूजिक रीचेस द वर्ल्ड. And please, if you would like to say something about Mahal. First of all, Raj, thank you. The music industry is nothing without music. The music label is nothing without music. So it's all about us. It's all about the musicians. It's all about the singers, the lyricists, the composers. It was always a thing to create a community, not an industry. Industries तो आती है, होती है, but community में और प्यार होता है, एकता होती है. And I always believe that, you know, we at Merchant Records, we want to create a community of good music and good musicians where there is no boundaries for any creative piece. चाहे वो lyric हो या music हो या गायकी हो, चाहे वो गज़ल हो या ठुमरी हो या pop song हो या कुछ भी हो. जब ये boundaries हम create कर लेते हैं ना, तो then it's no more art. It's very important to have that art, because music is truly an art form. It has become a business, that's a different thing, but there is no business without the art. So that's very important. और माहौल में मुझे इतना अच्छा लगा जब मैं पहली बार ये गाना सुना स्टूडियो में. मुझे राज की ऐसा लगा कि एक दूसरा पहलू है. This is another chapter in Raj's life, because बहुत राज ने इसके पहले भी कुछ गाने किए थे which were also incredible. Thank you. बहुत सारे he is a beautiful dancer, is a fantastic dancer, और हर गाने में डांस का एक एलिमेंट राज के गानों में रहा है. पर उसके साथ साथ he's done some great work when it comes to devotional music. Recently released on Mahashivratri, released a Kashmiri song, Kashmiri Shiv's Bhakti song, which was also very beautiful. पिछले साल हमने जब भूमि किया, उसमें सबसे बड़ा गाना, we did so many songs with such incredible artists, बहुत ही trending artists के साथ हमने काम किया, but हमारा सबसे बड़ा गाना था नाज़नीन, which was a Kashmiri folk song. So the love that he gets from his own community is truly incredible, and not just from India but from all over the world. इस next गाने में माहौल में क्या आने वाला था, ये मैं बहुत excited था. तो मैं जब सुना तो मुझे इतना बेहतरीन लगा. I'm sure you guys will also love it. I don't want to say too much, because when you see it and when you hear it, you'll know it. Sir.
So Merchant Records actually started from chaos, and it's still chaotic. We are still a very artist-driven community and an artist-driven label. It's organized chaos, exactly. It started from a need from us, where we felt that we needed some organization in life, and we were releasing independent songs. We didn't have a way to put it out the way we would have liked to, and we felt that we should become a label. So that's how Merchant Records was created. It's a label for the artist and by the artist, and we're very proud of that, you know, because a lot of times people come to us and say, you want to release a song and we want to release it on Merchant Records, and it gives us so much pride and pleasure to hear a song and say, okay, love it, let's do it. And so this is the journey of Merchant Records which we've had, and I am so glad that we are here today releasing this beautiful song, Mahal. Raj, let's set the Mahal. And Rohit bhai, thank you so much for doing this. Really, बहुत बहुत शुक्रिया. You know, it's so good to have you, who's such an important person from our industry, so respected, so you know, making larger than life things for cinema, and to be able to come for this intimate launch. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much. हम सबकी तरफ से. Before we watch the song, I just wanted to come and say something about your feeling, what you're feeling right now. That's all. Nothing about the song, nothing about me, but just what you're feeling. Just standing here next to all of you makes me very, very nervous. So that's what I'm feeling. I want to say a big thank you to you, Raj, because without any questions, you just came to me. You're like, this is the song I've made, and I want you to be a part of it. And it's my privilege, it's my honor that I'm a part of something so beautiful. And I think you guys will know when you see the song and when you hear the song. And I'm just very grateful to be here. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. And you've been so patient and so kind, and so all my friends who've managed to make it and come and support this song. Thank you so much, each and every one of you. I think आप लोगों के चेहरे देखकर मेरा तो माहौल बन ही गया आज का. And I hope that you liked what you saw and you liked what you heard. And Rohit sir, please आप कुछ कहना चाहिए गाने के बारे में. मैं यही बात कर रहा था कि कितना सिंपल रखा है, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ज़्यादा ओवरडू नहीं किया है गाने को, एंड इट्स बीन वेरी सिंपल एंड स्वीट. और मतलब कोई स्टेटमेंट देने की कोशिश नहीं की है कि सी व्हाट वी कैन डू, एंड दैट व्हाट वर्क्स, द सिंप्लिसिटी एंड द ऑनेस्टी इन द सॉन्ग. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. खास करके पूरी टीम को देख के यार ये वीडियोस निकालो, जब और बड़े हो जाओगे तो फिर यही प्ले होगा आप लोग का. सब बच्चे लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा. यू नो, लुक एट हिम. Raj, you forgot. I was talking about the mix also. That the mix is very good. You can hike your age, sir. Yes. That's Riya, everyone. Riya Sood. She's done the choreography for the video, and she's been a big help on set and making sure we don't overdo things, like you said. Raj, एक बहुत important काम गाने के रिलीज के बाद, I think वो बहुत important डिपार्टमेंट, उसको भी थैंक्स करना चाहिए. अंतिम तुदला for the hoardings. Of course. So my question is, what inspired you to like sign up with like this song, Mahal? Was it the Mahal of your love life? I wish it was, but I think I had been doing the last 3 or 4 songs that I've done in the last 2 years were more funk, more dance, which is again a big part of my personality. But this time around I thought, let's slow things down a little bit. और रोमांटिक गानों का भी मैं बहुत बड़ा फैन. आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू हिंदी फिल्म म्यूजिक एंड सॉन्ग्स. सो दिस वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड ऑफ माय म्यूजिकल पर्सनालिटी, एंड आई थॉट लेट्स एक्सप्लोर दैट. और ये वर्ड जो है माहौल, ये इतना कमाल है कि शुरुआत इसी वर्ड से हुई और इसके आसपास फिर चीज़ें बनती गई. Rohit sir, I have a question for you, a little unrelated, but what is the Mahal for Khatron going to be? जैसे होता है हर साल. एंड बाय द वे जो सुनते हैं हम आज भी ना, खतरों के खिलाड़ी म्यूजिक वाज डन बाय हिम.
both of them. रोहित जी, यू आर अरे इनका माहौल है आज, इनसे पूछो जरा, इनको नर्वस करो आज. उन्हीं के बारे में पूछना चाह रहा था कि यंग टैलेंट है और यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम, यू नो. तो आने वाले दिनों में लाइक यू ऑल्सो ट्राई टू पिक अप थिंग्स लाइक कभी कोई बहुत ही कोई अच्छा टैलेंट होता है तो यू टेक इन योर मूवीज. तो इस तरह से कुछ आप देख रहे हो? अभी से बता दूंगा तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा. अच्छा सलीम, जो मर्चेंट रिकॉर्ड्स है तो यू गिव प्लेटफॉर्म टू न्यू कमर्स, मतलब ये भी रहेगा. और ऐसे भी होता है कि बहुत बार आपके पास टैलेंट आते हैं, दे यू नो गो टू लॉट्स ऑफ, मतलब हमारे इंडस्ट्री में घूमते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स हैं इनफैक्ट लाइक यू नो, एंड वहाँ पर शायद उनको कोई चांस नहीं मिलता, बट दे गुड टैलेंट हमारे पास. आई मीन हो सकता है. तो थिंकिंग दैट ऑल्सो यू हैव यू नो कम अप विद दिस लेबल. मैंने ऐसा कभी सोच के नहीं किया कि सब लोग जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है वो हमारे पास आ सकता है. फिर ऐसा कभी सोच के नहीं किया. हमने सोचा था कि मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि हम एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं ऑफ क्रिएटर्स, जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, चाहे कुछ भी म्यूजिक हो, चाहे वो गजल हो, चाहे वो पॉप सॉन्ग हो, कव्वाली हो, भजन हो, कुछ भी हो. द सॉन्ग शुड हिट योर हार्ट. मैंने पहले भी ये कहा, फिर एक बार कह रहा हूँ कि म्यूजिक इंडस्ट्री इज नथिंग विदाउट म्यूजिक. तो जो आर्ट है वो अव्वल है, उसके बिना कुछ नहीं है. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये म्यूजिक जो है वो अपनी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है. हम ऑफ कोर्स इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, बट बहुत लोग इसको अपनी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा देखते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ लेबल दैट वी क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ वंडरफुल आर्टिस्ट हु डू म्यूजिक फियरलेसली, जिसमें जिसके पास कोई रोक टोक नहीं होती, जो कुछ भी बनाए अपने दिल से बनाए वो रिलीज कर सकता है हमारे साथ. और ऐसा नहीं कि हमारे पास पहले आए या लास्ट आए, यू नो, अगर वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पूरी दुनिया घूम के भी हमारे पास आए तो वो हमारी खुशनसीबी है, उसकी नहीं. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ना रह जाए तो फिर वो एक होता है वो एक्चुअली मैंने कमियां सुनने के लिए ही उनको बुलाया, क्योंकि जो कमियां वो बताएंगे वो कोई और नहीं बता सकता. तो मैं तो बस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हमसे हो सका हम करें. एंड यू नो एनीवेयर दैट वी फॉल्टर एंड दैट वी फील सर को जो लगे कि यार ये बेटर हो सकता था, ये इसको ऐसे कर सकते थे, दैट्स व्हाट माय एम इज ऑलवेज, टू कीप लर्निंग फ्रॉम द पीपल हु हैव मेड फिल्म्स एंड मेड सिनेमा दैट वी हैव ग्रोन अप ऑन. और जितनी कमियां हो उतना ही हम सीखेंगे, उतना मेरे लिए बेटर. रोहित सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी आपने रिव्यू दिया गाना देखने के बाद, हमने देखा हमेशा शो में तो आप डायरेक्ट एकदम ब्लंटली जैसा होता है कंजेशंस पे झाड़ देते हैं और रिव्यू भी देते हैं जो जैसा होता है वैसा. अभी हमने देखा बहुत ही आराम से स्मूथ गए. सही रिव्यू दीजिए सर, कैसा लगा आपको गाना? अच्छा था इसीलिए ना, वरना मैं इसको साइड में लेके झाड़ देता. घर का बच्चा है. एंड नहीं, उससे ज्यादा जो खास करके क्रेडिट गोज टू सलीम सुलेमान के, मतलब they established music directors for so many years and they've been doing great job. उसके बाद भी सब यंगस्टर्स को लेके चलना, न्यू कमर्स को लेके चलना, मतलब वो हर कोई नहीं करता. क्रेडिट गोज टू दैट. सर, आपने कई बार अभी फियरलेसली एक कम्युनिटी बनाने के ऊपर आपने स्ट्रेस किया, और फियरलेसली वर्ड आपने रिपीटेडली यूज किया है, बिकॉज म्यूजिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये आप न्यू टैलेंट्स और इंडिपेंडेंट म्यूजिक को आप ये इतना सपोर्ट करें क्योंकि यहाँ पे फियरलेसली काम करने का मौका मिल रहा है, एंड समवे फिल्म म्यूजिक में वो फ्रीडम चला जाता है. इज दैट द रीजन? मैंने ऐसा नहीं कहा. आज फिल्म्स में भी बहुत कमाल का म्यूजिक आ रहा है. आप पठान देख लीजिए, बहुत ही कमाल का म्यूजिक है. बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छा म्यूजिक आता है. और बट फिल्म म्यूजिक में एक किरदार होता है, एक स्टोरी होती है, एक तरीके की फीलिंग होती है. हम उस दुनिया का म्यूजिक बनाते हैं. जब हमने कुर्बान का म्यूजिक बनाया तो एक ब्रीफ थी, जब रब ने बना दी जोड़ी का म्यूजिक बनाया, एक ब्रीफ थी, चकने का एक ब्रीफ थी. इस प्लेटफॉर्म पे मर्चेंट रिकॉर्ड्स में जब भी आप कोई गाना लेके आते हैं, पहली बात तो बहुत सारे जॉनर्स शायद फिल्म में हम कर ही नहीं पाते. जैसे कि गज़ल, बहुत ही रेयर गज़ल की कोई गज़ल आती है बाहर, बहुत ही रेयर कोई ठुमरी रिलीज़ करता है, बहुत रेयर कोई कव्वाली रिलीज़ करता है, तो वो हम सब करते हैं. तो फिल्म का आप एग्जाम्पल ना दे तो बेहतर है, बिकॉज फिल्म की अपनी एक दुनिया है, और जो फिल्म कंपोजर है उसको वो दुनिया में शामिल होकर म्यूज़िक बनाना पड़ता है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस फिल्म के लिए.
म्यूजिक अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कोई सीमा नहीं होती, इसलिए मैंने कहा देयर इज नो रोक टोक, कोई फियरलेस इसमें कुछ वो नहीं है कि हम एक आइटम सॉन्ग ही बनाना है तो ही चलेगा, तो उस टाइप का वो ब्रीफ नहीं होता हमारे यहाँ। बट फिल्म में भी आजकल बहुत कमाल का म्यूजिक आ रहा है और उसमें भी ब्रीफ बहुत ब्रॉड होती है। जैसे हमने फैशन का जब म्यूजिक किया था तब मधुर ने मुझे कहा था कि यार मेरा कोई ब्रीफ नहीं है, मुझे हिट गाने चाहिए, तो इट्स ट्रू, तो इट्स यू नो बट दैट इज अ गुड थिंग आल्सो बिकॉज आई न्यू समवेयर के कैनवस बहुत ओपन है, तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ओपन कैनवस है। रोहित सर आपसे भी एक सवाल है, रिव्यू आपने अच्छा दिया और आपने कहा कि अगर क्योंकि आपको वाकई में अच्छा लगा इसलिए आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया, सो व्हाट आर द चांसेस कि राज पंडित सिंघम 3 में आपके लिए गाना रहेगा? क्या बोलता है मैडम? सिंघम 3 का तो बोल नहीं सकता मैं क्योंकि उसमें गाने ही बहुत कम होंगे, बट आगे चल के जरूर होगा, लेकिन अभी से बोल के सरप्राइज क्यों ये करूँ ना, खराब बच्चे का ऐसा हो गया कि अरे तेरा सरप्राइज बर्थडे आ जा। यू लुक बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और यू नो सब एंगल से आपने आपको देख लिया है। एक्चुअली मैंने पहले भी पूछा था एक बार यू नो कि कोई चांसेस है आपके कि कोई फिल्म में कोई ऑफर आए तो आप करोगे, जैसे आपने कहा था कि नहीं दूसरी, लेकिन अभी हम लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट हो गए यू नो खतरों के खिलाड़ी के। आई मीन टू से यू में भी बस गया नेक्स्ट एक्टिंग के अंदर कभी कभी खिलाड़ी करते हुए 8 साल हो गए। हाँ तो अभी तो मैं वही बोल रहा था, अभी थोड़ा माइंड सेट चेंज हुआ होगा, हो सकता है अजय देवगन आपको कोई बोले कि भाई मेरी अगली वाली फिल्म में नेगेटिव रोल में या कोई रोल में आप लोगों को कोई प्लानिंग हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ किसी ने ऑफर दिया नहीं सर? अरे सुनने में बड़ा ऑड लग रहा है किसी ने ऑफर दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली वो जितनी फ्रीडम मुझे स्टूडियो में इनके साथ मिलती है उतनी घर पे उनके साथ भी मिलती है, बट मैं हमेशा अपने फर्स्ट ड्राफ्ट्स या कुछ जो अगर सुनाने लायक मेरा बन जाता है तो मैं हमेशा सुनाता हूँ, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच विद एवरीथिंग। तो अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है ही इज स्ट्रेट अप, एंड आई थिंक आई एज स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक आई नीड दैट ऑनेस्टी फ्रॉम पीपल अराउंड मी। और इसमें जो एक एडिशन इनका है जो वीडियो से कनेक्टेड नहीं है बल्कि ऑडियो से है, वो जो ट्रम्पेट का साउंड आप सुनते हैं गाने में वो उनका आइडिया था। मैंने एकदम रफ स्केच उनको सुनाया था कि ये मेरा गाना है, ये धुन है, बहुत एक बेसिक बीट पे, एंड इस इसमें वो एक यू नो सैक्सोफोन या ट्रम्पेट टाइप का कुछ हॉर्न इंस्ट्रूमेंट आ सकता है, यू नो जैसा वो रूप तेरा मस्ताना जो एक गाना था बहुत कमाल का, उस तरह का एक फील है इस गाने में। अशोक जी अपने डेज में चले गए। हाँ बिल्कुल, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा अच्छा इफ यू फीलिंग लाइक दैट देन दैट्स अ विक्ट्री फॉर मी इन अ वे, बिकॉज एट दिस स्टेज इफ यू आर लाइकिंग इट। सो उनके सिर्फ विजुअल सजेशंस भी नहीं, म्यूजिकल सजेशंस भी काफी कमाल होते हैं। सो या आई मीन दैट्स द, मैं लोगों से सुनता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, और फिर फाइनली आई पुट आउट द सॉन्ग। इट्स ऑल काइंड्स, स्टार्टिंग विद हिंदी फिल्म म्यूजिक बिकॉज आई हैव ग्रोन अप ऑन हिंदी फिल्म के गाने, और but it's also diversified into funk, into R&B, into qawwalis. I also listen to ghazals. I also listen to some devotional music. तो मेरा बहुत ही mixed platter है. तो I don't focus on, because as again like I said, as a musician you have to listen to everything, you have to learn from all kinds of genres and styles. तो जैसा माहौल होता है वैसा ही गाना होता है. It's like that.